Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. Incorporated. The book is written with a very simple objective in mind that Punjab must rethink, Punjab must reinvent, and we should realize who we are. So, I think today I will want Shaurya to talk about his book, Shaurya to introduce how the idea of this book came up and why he has written this book. I know I've been always talking most of the time to most of my friends, but at the same time this is his day. So Punjab Incorporated is coming from a very simple mind that we the people of Punjab must rethink a little. So I will straight away give it over to Shaurya that he can take it up and he can talk about how, why, when this idea came and why he's written this book. Shaurya. Well, good afternoon, everyone. So, initially, the idea of this book came when I ended my grade 10, and me and my dad were having a conversation regarding some political Punjabi news. And since we were having the conversation, then I just told him that I don't think I'm a typical Punjabi because neither am I very fluent in speaking. And that's when I went back to my room and I started searching about. The first thing which comes to my mind is business in terms of researching anything and everything because I'm an entrepreneurship student and I feel as if anything and everything's history can be connected towards business and entrepreneurship. So I started to pick up the subject called Entrepreneurial Journey of Punjab. And there wasn't anything which was very detailed as such, but there were a little bit of references here and there. And when I started with the idea, I just thought one thing that nowadays all of my friends around me, they're concerned, typically saying that "Killa kat ke apna ek defender le lenge hain." But there's something which is way much more towards that one killa. And that's when I thought कि जिस किले को ये बेचने की बात कर रहे हैं, it contains so much of history in that soil कि इसी soil के अंदर our predecessors they used to do trade which used to go up till Milan, Europe, USA and multiple other countries. So what is the reason that I, being a Punjabi kid, am not able to relate to my own roots? And that's when I picked up the idea of Punjab Incorporated. To awaken the kids like me and children like me that Punjab is way much more than politics, drama, drugs and everything else. And that's when I went to my first friend, which is ChatGPT nowadays. So मैंने फिर ChatGPT के ऊपर जाके research करी that what do you think कि आज की डेट में पंजाब क्या है? तो उसने जो मेरे को reply दिया, उससे straight away I was awakened because उसके अंदर जो वो मेरे को बता रहा था that was कि पंजाब आज की डेट में is only drugs, criminalization, politics and a lot of drama infused with Bollywood. So I was like कि ये एक फॉरेन टूल मेरे को मेरी ही स्टेट और मेरी ही कंट्री के बारे में कुछ ऐसी चीज़ बता रहा है which is very not true. फिर मैंने जाके थोड़ी सी और डिटेल करी मैं गूगल पे गया started reading articles जहाँ पे ट्रिब्यून के आर्टिकल्स थे इंडियन एक्सप्रेस के थे पर्सनल डायरी एंट्रीज थी जहाँ से मेरे को फर्दर पता चला कि पंजाब इज द प्लेस wherein we had Mr. Todrimal जी जिन्होंने 43 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड के लिए गोल्ड कॉइंस लेड आउट करे. बट आइडिया ये नहीं था कि उन्होंने गोल्ड कॉइन्स रखे. आइडिया ये था कि उनके पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से यू हैड सो मेनी गोल्ड कॉइन्स. उसके पीछे क्या गया कि उनके पास गोल्ड कॉइन्स इतने सारे कहाँ से आए एंड करते क्या थे जिसकी वजह से गोल्ड कॉइन्स भी थे उनके पास बिकॉज उस टाइम पे गोल्ड कॉइन्स होना ही बहुत बड़ी बात है. सो दैट्स व्हेन द रिसर्च स्टार्टेड. और उसके बाद हम पहले चैप्टर में बात करते हैं ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स जिसके अंदर हम बोलते हैं कि काफ़ी सारे इन्वेडर्स तो आए, अहमद शाह अब्दाली आए एंड देन मल्टीपल ट्रेड इन्वेडर्स केम बट उनके अंडर ही काफ़ी सारे ट्रेडर्स भी थे जिन्होंने ट्रेड इंट्रोड्यूस करी. आज की डेट में हम सबको मतलब खाना बहुत अच्छा लगता है राइट. रोगन जोश सबने खाया होगा, पनीर टिक्का बटर मसाला सबने खाया होगा बट वो आया कैसे? वो सब इसीलिए आया बिकॉज when these invaders came इनके साथ जो traders आए they brought their spices
स्पाइसेस आए, उनके साथ डिशेस आई, एंड वो चीज़ें अमेलगमेट हुई जिसकी वजह से आज की डेट में हम जिस पंजाब को जानते हैं वो ऐसे अमेलगमेटेड है। तो फिर उससे रिसर्च और एक्सपैंड हो गई कि स्पाइस ट्रेड कैसी थी, एंड देन कैमल ट्रेडिंग कैसी थी, एलिफेंट ट्रेडिंग कैसी थी। इससे आइडिया और बढ़ता गया एंड इट केम डाउन टू सक्सेशन, विच इज़ द लास्ट चैप्टर। उसमें हम ये बात करते हैं कि ये जो फॉरगॉटन पंजाबी वैल्यूज़ हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम आगे जा रहे हैं, ये कैसे आगे लेके जाई जा सकती हैं और इनके कुछ टेस्टामेंट एग्जाम्पल्स क्या हैं। जैसे हमारे पास ट्राइडेंट ग्रुप है, अडवांस साइकिल्स है, फिर बिग सोलर है। तो दैट्स व्हाट चैप्टर 8 टॉक्स अबाउट। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे इट्स अ जर्नी व्हिच स्टार्ट्स विद व्हाट वाज पंजाब बिफोर 1947, बिफोर even we could understand what business was and what was the entrepreneurial spirit of Punjab, जिसको हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। एक चैप्टर में जैसे मैंने बताया हम ट्रेडर्स एंड इन्वेडर्स की बात कर रहे हैं, जो आगे बढ़कर सेकंड चैप्टर के टूवर्ड्स आ जाता है महाराजा रणजीत सिंह जी के पास, who was in my words the entrepreneurial edge awakening person who actually took entrepreneurship in his hands during those times। और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि मेरे पास मुगलों के थ्रू एक ऐसी डायनेस्टी आई है जो इस टाइम पे टूट रखी है, इसको हमें जोड़ना है और इसको आगे ले जाकर हमें ट्रेड और साथ के साथ सबको इकट्ठे लेके आगे चलना है, विच इज़ द वैल्यू ऑफ अ ट्रू लीडर जो आज की डेट में हमें पढ़ाया जाता है। सो उस केस को अगर हम थोड़ा और एक्सपैंड करें, हमें पता लगता है कि उन्होंने सर्टेन ट्रेड लीव्स आगे जनरेट करवाई, स्टैम्प्स आई और फिर टैक्स उन्होंने ईज आउट कर दिया, जिसकी वजह से जो ट्रेड थी वो और ज़्यादा उभर के आई। और जब वो हुआ उसकी वजह से ट्रेडर्स को और ज़्यादा जगह मिली टू ग्रो, जिसकी वजह से फर्दर जब वो आगे गए तो वो ट्रेड मिलान तक पहुंची, यूरोप तक पहुंची एंड इट रीच अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर हम जैसे ही थर्ड चैप्टर की तरफ आते हैं, वी स्टार्ट टू टॉक अबाउट पीपल, कि लोग कैसे थे और उनके बिजनेसेस कैसे थे और ये सब कहाँ होता था, मुल्तान, लाहौर, अमृतसर। जब हम ये बात करते हैं हमें ये भी पता लगता है कि इनके अंदर एकता कितनी थी, ये लोग इकट्ठे कैसे रहते थे। हमें ये भी समझ आता है कि बीच में एक ऐसा टाइम था कि जो शिकारपुरी ट्रेडर्स थे उनको अपना जितनी भी वेल्थ थी, जितना भी ट्रेड था, बीच में एक मौका आता था जब इन्वेडर्स आता था और उनको वो सब कुछ छुपाना पड़ता था, तो वो एक महाराजे के किले के नीचे ही गुफा खोद के वहाँ पे सामान छुपाते थे और महाराजा भी उन्हें अलाउ करता था। तो वो बड़ी चीज़ें हम आज की डेट में कैसे इनकलकेट करते हैं, द लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। ऐसी सी चीज़ें हम बुक के थ्रू बात करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फिर हमारे पास एक चैप्टर है कॉल्ड द नंबर्स, उसके अंदर हम ऐसी बातें करते हैं जिसको देख के मैं खुद अमेज्ड रह गया कि हमारे पास कैमल्स हैं जो एक सर्टेन लेवल ऑफ ट्रेड कैरी कर रहे थे, जिसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा थी जो आज की डेट में हम सोच भी नहीं सकते। फिर हम ट्रेडर्स की बात ऐसे करते हैं, सो बेसिकली अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें, 200 कैमल्स पंजाब से चलते हैं जिनके अंदर एक कैमल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 500 to 1000 kgs ऑफ बुलियन है, गोल्ड है, स्पाइसेस हैं और बहुत सारा ट्रेड का मटेरियल है। अब उनकी वैल्यू रफली आज की डेट में 2 to 4 करोड़ के आसपास वेरी करती है, बट ड्यूरिंग दोज टाइम्स 200 कैमल्स का एक ट्रेड कार्ड चलाना पंजाब से जो दिल्ली तक रीच करे, उसके बेसिस पे अगर हम फंक्शनिंग देखें तो आज की डेट में जितने हमारे बैंक्स हैं, whether it be HSBC और हमारा ICICI बैंक, all of them follow the same system. Guards चलते हैं, trucks चलते हैं. That's what used to happen back then. We had Labanas who used to make the trade, जिसके आगे we had शिकारपुरी traders who used to protect them, जिससे वो आगे bullion चलता था, trades चलती थी, and that's how those cards reached Delhi and that's how their trading happened. जिसकी वजह से आगे हमें समझ आता है that these communities, ये जो communities थी, लबानास, बंजारास, अरोड़ास, बनियास, खत्रीज, इन सब ने एक टाइम पे यूनिफाइड तरीके से काम करके अपनी अपनी ट्रेड को भी आगे बढ़ाया, एट द सेम टाइम जहाँ पे रहते थे ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छे से बढ़ाया। जिसके बाद हम अगर हम 6th 7th चैप्टर के टूवर्ड्स आते हैं, वी टॉक अबाउट द हब्स एंड द पीपल एंड फर्दरमोर द सक्सेशन एंड द कोर वैल्यूज। तो कोर वैल्यूज हमारे पास ऐसी थी कि कई वैल्यूज हैं, जैसे कि सेविंग करना हम सिखाते हैं शुरू से, सो वो उस टाइम पे कैसे प्रिवेलेंट था, एंड फर्दरमोर अगर हम आगे चल रहे हैं तो हम सबको इकट्ठे कैसे लेके चलें, वो बहुत प्रिवेलेंट था। सो वी टॉक अबाउट 17 such core values in the book, जिसके अंदर these are the values which have been there since day one in the diary of these two.
और उसके बाद जब हम सक्सेशन के टूवर्ड्स आते हैं हमें और समझ आता है कि जब ये सारी वैल्यूज़ को हम इन सारे ट्रेडर्स से इंस्पिरेशन लेके आगे लेके चलें तो उससे हम आज की डेट के बड़े बड़े MNCs और एम्पायर्स के साथ भी कम्पीट कर सकते हैं और हमारे पास भी इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योर्स पंजाब से भी निकल सकते हैं। बिकॉज अगर हम सोच के देखें टेस्ला रिसेंटली इंडिया में है, राइट। अब टेस्ला जब इंडिया में है उसके कंज्यूमर्स हमारे पास पंजाब में भी हैं अच्छे खासे। एक हफ्ते पहले की बात है मैंने 2-3 टेस्लास इकट्ठे एक दिन में देखी। बट किसी के दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि आज की डेट में अगर हम टेस्लास चला रहे हैं और इनकी जो फैक्ट्रीज बन रही हैं ये सब साउथ में ही क्यों है? वाई इज इट देयर पंजाब से नीचे वाली साइड, दिल्ली के नीचे वाली साइड? वाई डजंट इट कम टू पंजाब? पंजाब के अंदर हमारे पास ये वाली इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही हैं, ये वाले एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज वाई आर वी स्टक? क्या हम फंसे हुए हैं ड्रग्स, पॉलिटिक्स और करप्शन के बीच में? जबकि ये चीज़ आज की डेट में प्रिवेलेंट है और जैसे हम बुक के अंदर पढ़ रहे हैं कि हमारे पास शुरू से इससे बहुत ज़्यादा कुछ था बट वो